Yes, hello my dear students. Good morning and Jai Hind to you all. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, as you know that we are discussing here the second chapter of geography, that is the physical features of India. And already so many topics we have completed and we have revised also. By today, we are going to continue our chapter with the topic the peninsular plateau. Okay. Two major divisions of India we have discussed already, that is the Himalayan range and the second one is the northern plains, and the third is the peninsular plateau of India, and that we are going to discuss about today. So let's start it. So as you are knowing that first we will discuss about the formation of this plateau कि ये plateau बना कैसे है. आइए डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मेशन. जो फर्स्ट लाइन में है, it is formed due to the rifting and drifting of Gondwana land. Look here, two new words are here, rifting and drifting. What these words are? Rifting, you are already knowing that the breaking down of the plates is known as rifting, the process of breaking down of the plates. And what is drifting? Drifting means the movement of the place from one place to another is known as drifting. So as you are knowing already that agar suppose this is Asia in the northern hemisphere and somewhere in the southern hemisphere there was Indo-Australian plate like this, and it was moving slowly to the Angara land, and finally it collide here with this and form our India. This portion has the plateau, okay, and this portion is known as the peninsular plateau of India. So हम क्या कह सकते हैं, पहले तो रिफ्टिंग हुई, मतलब ये गोंडवाना लैंड से डिफरेंट क्या हुआ, डिवाइड हुआ, अलग हुआ, रिफ्टिंग हुई, और फिर ड्रिफ्टिंग यानी स्लोली ये मूव होते हुए यहाँ आया, यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुआ, और फिर फाइनली इंडिया का पार्ट बन गया, और ये क्या था, पेनिनसुलर रीजन था जो एक प्लेट्यू से बना हुआ था. सो फाइनली इस तरीके से इंडिया को एक प्लेट्यू मिल गया, दैट इज नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. ओके, सो दिस वाज द फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. एंड अब इसके बारे में कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं. इट इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल. मोस्टली यहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है. क्यों, उसका रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. मेड बाई इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक की वजह से ही यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है. क्यों मिलती है हम लोग आगे के टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे. The next one is it has broad and shallow valleys and rounded hills. Means कि जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उस एरिया में, उस रीजन में आपको ब्रॉड यानी काफ़ी बड़े बड़े और सैलो मतलब काफ़ी डेप्थ वाले आपको वैलीज देखने को मिलेंगे, एंड राउंडेड हिल्स. और वहाँ के जो हिल्स हैं वो क्या है, स्ट्रेट नहीं है, वो राउंडेड हिल्स हैं. ओके, एंड आफ्टर दैट द टू मेजर पार्ट. Its two major divisions are the Central Highlands and the Deccan Plateau. Look, suppose that this is India and this is the plateau, peninsular plateau. Okay, so this is the peninsular plateau which is divided into two parts. The first one is Central Highland and the second one is Deccan Plateau. Look, in MP, ओके, एमपी में क्या है, एक रिवर है दैट इज नोन एज नर्मदा, हेयर अप्रॉक्सीमेटली. ओके, नर्मदा रिवर क्या करती है, इस प्लेट्यू को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. द नॉर्थ साइड ऑफ द नर्मदा रिवर इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द साउथ साइड ऑफ द नर्मदा रिवर इज नोन एज द डेकन प्लेट्यू. दिस इज द साउदर्न डायरेक्शन, दिस इज द हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड दिस इज द डेकन प्लेट्यू. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टू पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. आई होप कि ये फॉर्म कैसे हुआ है, इसके 2 और 3 फीचर्स एंड इसके डिवीजन क्लियर हो गए होंगे आपको. चलिए, सो गिव मी जस्ट 1 मिनट, देन आई विल कम विद दिस सेंट्रल हाईलैंड्स. सो गिव मी अ सिंगल मोमेंट गाइस. ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स. ओके, so first we should know that where it is located. So look here, this is the India I had tried to make. This is the mountain range Himalayas. देखिए हम सबको रेफरेंस में लेके बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या है. हिमालयास के जस्ट पोर्च पे आपको पता है दिस इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद, नॉर्दर्न प्लेन में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जस्ट प्लेन्स के बाद. तो प्लेन्स के बाद का ये जो पोर्शन है कंप्लीट ट्रायंगुलर शेप में आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू, and here this is the Narmada river. Okay, and नर्मदा रिवर ही क्या करती है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. नर्मदा रिवर के अगर जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको विंध्या माउंटेन सीरीज मिलेगा, एंड इसके अलावा
महादेव हिल्स भी मिलेगा। फाइन, ये हिल्स हैं जो मैंने ब्लैक से भी बनाया है। सो नाउ लुक दिस नर्मदा और वी कैन से दिस विंध्या एंड द महादेव हिल्स and divide this plateau into two parts. The northern part is known as the Central Highlands. What? The Central Highlands. ऊपर वाले पार्ट को देखिए, इसको जरा हम फिर से अगर अलग से बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, पतला सा। ओके, इसके जस्ट यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको रिवर मिल जाएगी, उसके नीचे यहाँ पे आपको हिल्स मिल जाएंगे। कंप्लीट हिल्स से कवर्ड है। दिस इज द नर्मदा रिवर फ्लो जस्ट बिलो द सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, दिस इज द नर्मदा रिवर। फाइन, दिस इज द अरावलीज। आई होप दिस इज अरावली। यस, दिस इज अरावली। ओके, अरावली रेंज। दिस इज द शतपुना रेंज। This is Mahadev and this is कैमूर, आप कह सकते हो कैमूर रेंज और कैमूर हिल्स। देखिए, सेंट्रल हाईलैंड के जस्ट साउथ में आपको क्या क्या मिल जाएगा, कितना पहले तो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के जस्ट नीचे सतपुना रेंज है। सतपुना रेंज माउंटेन्स की एक हिल्स की एक रेंज है, सीरीज है। उसके जस्ट बिलो और आगे तक महादेव हिल्स है, उसके जस्ट ऊपर या नीचे थोड़ा सा कह सकते हो कैमूर हिल्स है जो आगे तक गया है। मतलब ये कंप्लीट क्या कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर देते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स को नीचे वाले पोर्शन से। द साउदर्न पोर्शन ऑफ द प्लेट्यू दैट इज नोन एज द डेकन प्लेट्यू, डेकन प्लेट्यू से कंप्लीटली इसको डिवाइड करके अलग कर देते हैं। मतलब इस पोर्शन से इस पोर्शन तक आने के लिए आपको बीच में हिल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। अब जरा ध्यान से देखिए, सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट की तरफ आपको ब्रॉड मिलेगा और कंपेरिजन करेंगे ईस्ट डायरेक्शन से तो वेस्ट डायरेक्शन में ये काफ़ी ब्रॉड है और ईस्ट डायरेक्शन में ये थोड़ा सा नैरो हो गया है। ठीक है, इसकी स्ट्रिप नैरो हो गई, मतलब इधर कम है और इधर ज़्यादा है। चलिए आइए देखिए है क्या। इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। फाइन, टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। क्लियर। नेक्स्ट, इन द साउथ it is covered by the Vindhya. In the south it is covered by the Vindhya and the Satpura range. Look, the Satpura range, इसी में एक आपको विंध्या रेंज भी मिल जाएगा। बगल में आप बना सकते हो यहाँ महादेव हिल्स से पहले यहाँ पे विंध्या रेंज एंड देन महादेव रेंज। ओके, सतपुना रेंज, विंध्या रेंज एंड अरावलीज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में देखें अगर, सो दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट डायरेक्शन एंड इन द नॉर्थ वेस्ट देर इज अरावली। ओके, अरावली हिल्स, अरावली फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। इन द साउथ सतपुड़ा, विंध्या, महादेव, कैमूर एंड इन द नॉर्थ वेस्ट देर इज Aravali. And the last we have to discuss that how many rivers, which rivers are flowing in this region, that are the rivers flow in this regions are Chambal, Sindh, Betwa and Ken from south west to north east. अब इसको समझिए ज़रा, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट का क्या मतलब है। मतलब दिस इज द साउथ डायरेक्शन, तो साउथ एंड दिस इज वेस्ट, मतलब इधर से नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में फ्लो होती हैं। ठीक है, ये और यहाँ से नीचे से ऐसे फ्लो होते हुए इधर आती हैं और ऊपर कहाँ गंगा में मिल जाती हैं। ये सब रिवर्स क्या हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप कि आपको सेंट्रल हाईलैंड्स क्लियर हो गए होंगे। सेंट्रल हाईलैंड में हमको एक चीज़ और डिस्कस करनी है। नॉर्थ वेस्ट में हमको पता है अरावलीज है, साउथ में हमको पता है इधर नर्मदा रिवर है, उसके बाद विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, कैमूर हिल्स हैं। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है इसको भी अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को डिस्कस किया था, पंजाब साइड में पंजाब प्लेन्स, फिर मिडिल में आ जाएंगे तो गंगा प्लेन्स, वैसे ही इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। और वो नाम है, पहले इधर सबसे नॉर्दर्न वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो इसको हम कहते हैं मालवा। मालवा, ठीक है। आप फर्स्ट पोर्शन ऐसे डिवाइड कर लो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, मालवा। क्लियर। उसके बाद सेकंड वन इज नोन एज बुंदेलखंड। बुंदेलखंड सेकंड वन। द थर्ड वन इज नोन एज बघेलखंड।
Baghel Khand. And the last one, this fourth part, is known as the Chota Nagpur Pathar or Chota Nagpur Plateau, you can say. Okay, so we can say that the Central Highlands is further divided into four parts. The Malwa, first part, from west to east अगर देखा जाए, the Malwa, the Bundelkhand, the Baghelkhand and the Chota Nagpur Plateau. I hope the Central Highlands is clear to all of you, everything in this. Okay, and now we are going to discuss about the Deccan Plateau. So just give me a single moment again. Okay, now look guys, after the Central Highlands there is the Deccan Plateau, the south of the Narmada river. This is the Narmada river, and in the south direction of this Narmada river, this portion of the plateau is known as the Deccan Plateau. Okay, अब देखिए इसको डिस्कस करते हैं. It is located to the south of Narmada river, which we have discussed already. The next one, it is covered by Satpura range. Look, first one, the Satpura range, Mahadev, the Mahadev, sorry, this is the Vindhya, this is Satpura, Vindhya range, V, Satpura range, S, Mahadev, M, Kaimur and Maikal. ये 5 हिल्स हैं, हिल्स आप कह सकते हो, ठीक है, जो इसका पूरा कंप्लीट नॉर्थ बॉर्डर बनाते हैं. ओके, कैमूर, मैकाल रेंज इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द वेस्ट. Yes, sorry, we have some technical issue. Let's start with the second point again. It is covered by Satpura, Vindhya, Mahadev, Kaimur and Maikal range. एक बार जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे. This is the Deccan Plateau. It is covered by Vindhya range, Satpura range, Mahadev range, Kaimur range and Maikal range from the north. North direction में आप देख सकते हो. Okay, look, this is the Deccan Plateau. This is north direction. This is south, east and west. Okay. From the north, तो आप यहाँ देख सकते हो, this is the Narmada river and let me make the hills with the black marker. This is the Vindhya hills, the Satpura hills, the Maikal hills, the Kaimur hills, the Mahadev hills. Sorry, the Mahadev hills, the Kaimur hills, the Maikal hills. Okay, and after that, western and eastern ghats from the west and east respectively. Look, in the west direction there is western ghats. Okay, ये भी hills की एक series है west direction में, जिन्हें हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, और ईस्ट डायरेक्शन में भी हिल्स की एक सीरीज है जिन्हें हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं. ओके, तो अगर आप देखेंगे तो जो डेक्कन प्लेट्यू है ये कम्प्लीटली 3 साइड से माउंटेन्स से, सॉरी, हिल्स से कवर्ड है, एंड दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द डेक्कन ट्रैप. ओके, वाई इट इज नोन एज द डेक्कन ट्रैप? बिकॉज फ्रॉम ऑल दीज 3 साइड्स द डेक्कन प्लेट्यू कवर्ड बाय द hills. From west it is covered by western ghats, from east it is covered by eastern ghats, from north it is covered by the Vindhya hills, the Satpura hills, the Mahadev hills, the Kaimur hills and the Maikal hills. Okay, and after that, look, now we have to discuss about this western ghat and eastern ghat. Okay, so first western ghat. Look, these ghats are continuous range of hills covered through crossed by passes only. ये जो हिल्स हैं वेस्टर्न घाट्स में, ये कंप्लीटली क्या करते हैं, डेक्कन प्लेट्यू को कोस्ट लाइन से अलग करते हैं. ओके, और अगर प्लेट्यू से हमें कोस्ट लाइन में जाना है तो हमें इन हिल्स को क्रॉस करना ही पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्टली क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, क्रॉस नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कुछ पासेस भी हैं. पासेस क्या होता है? किसी भी हिल या माउंटेन के बीच से एक साइड से दूसरे साइड में जाने का जो रास्ता होता है, दैट इज नोन एज द पास. तो देर आर 3 पासेस इन वेस्टर्न घाट्स, 1, 2 और एक नीचे मिलेगा आपको. द फर्स्ट वन इज नोन एज थाल घाट. ओके, थाल पास आप कह सकते हो, जो मुंबई महाराष्ट्र में है, जो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है. एंड आफ्टर दैट भोर, सेकंड वन. लुक, द फर्स्ट इज T मीन्स थाल, सेकंड वन B इज भोर एंड थर्ड वन इज P मीन्स पाल. लुक, सेकंड वन भोर पास. भोर पास भी महाराष्ट्र में है, जो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है. पुणे, ओके, डेक्कन प्लेट्यू पे नहीं है, ये कोस्ट लाइन की तरफ है और ये मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है. एंड नीचे बिल्कुल आ जाएंगे तो आपको वहाँ पे पाल पास मिलेगा, जो कोची को चेन्नई से कनेक्ट करता है. कोची को चेन्नई से कनेक्ट करता है. ओके, फाइन. तो आई होप कि आपको ये पासेस क्लियर हो गए होंगे और वेस्टर्न घाट क्लियर हो गया होगा. अब कुछ कंपैरिजन्स हैं जो हमें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में कर रहे हैं. कुछ हिल्स हैं, फेमस प्रोमिनेंट पीक्स हैं जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के हैं, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है. जस्ट गिव मी अ सिंगल मोमेंट टू राइट दैट ऑल एंड देन आई विल कम बैक.
Okay. So look guys, now we are going to compare the Western Ghat with the Eastern Ghat. So look, this is the Western Ghat in the west direction of the Deccan Plateau, and this is the Eastern Ghat in the east direction of the Deccan Plateau. All these two Western Ghats and Eastern Ghats are the what? The hills. Okay, fine. So let's discuss first of all the hills. कि जो वेस्टर्न घाट्स में हिल्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स में हिल्स हैं, पहले ये समझिए कि जो वेस्टर्न घाट्स में हिल्स हैं उनका एलिवेशन यानी उनका एल्टीट्यूड, उनकी हाइट ईस्टर्न घाट्स में जो पाए जाने वाले हिल्स हैं उनके एल्टीट्यूड से, उनकी हाइट से कहीं ज़्यादा है। कंपैरिजन करेंगे तो वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा हाइट के आपको हिल्स मिलेंगे, ईस्टर्न घाट्स में कम हाइट्स के हिल्स मिलेंगे। एवरेज एलिवेशन यानी अगर एवरेज हाइट देखी जाए तो आपको वेस्टर्न घाट में 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर होगा, 900 to 1600 meter, while in Eastern Ghat there is only 600 meter. The average elevation I am talking about, not the complete height, I am talking about the average height only. Okay, इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, but average देखेंगे तो 600 meter ही होगा। And after that, Anaimudi 2695 meter is situated here in the Western Ghat. Anaimudi is a hill, is a peak. Doda Beta is also a peak of Western Ghat which has the height of 2637 meter, which is also situated here in the Western Ghats. अगर कंपैरिजन करें ईस्टर्न घाट में तो ईस्टर्न घाट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज नोन एज द महेंद्रगिरी हैज द हाईएस्ट हाइट इज 1501 मीटर ओनली। लुक, इसमें टू हैं, अनाईमुड़ी एंड डोडा बेटा 2695 एंड 2637। Mahendragiri is only 1501 meter which is situated here in the Eastern Ghat, which is the highest peak of the Eastern Ghats. Fine, so this was the Western Ghat and Eastern Ghat. After that, अगर हम देखें तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका एक छोटा सा पोर्शन इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलता है। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में देखिए, a portion of the plateau is also visible in the northeast known as मेघालय। ये जो नॉर्थ ईस्ट में डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट पड़ता है, यहाँ पे मेघालय स्टेट है। ओके, इसी के नाम पे हम इसको मेघालय प्लेट्यू भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको नॉर्थ कोचर हिल्स भी कहते हैं, नॉर्थ कोचर हिल्स क्योंकि नॉर्थ साइड में है। एंड कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी कहते हैं, जो डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पोर्शन हमारे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में इंडिया के पड़ता है। अब देखें, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पोर्शन है, उसके जो प्रोमिनेंट पीक्स हैं, मतलब जो हाईएस्ट पीक्स हैं, वो कौन कौन से हैं? दे आर द गारो हिल्स, द खासी हिल्स एंड द जयंतिया हिल्स। वो आपको यहाँ पे मेघालय में मिलेंगे। सबसे पहले आपको मिल जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में द गारो जी, द खासी के एंड द जयंतिया जे। गारो, खासी एंड जयंतिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, दीज आर द थ्री प्रोमिनेंट पीक्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू which portion lie in the northeast direction of India, or you can say northeast portion of India. So with this guys, we have completed the peninsular plateau of India. I hope this is all clear to you. And अगर इससे आपको कोई प्रॉब्लम होती है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, हम उसको नेक्स्ट लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन डेजर्ट थार एंड द कोस्ट लाइन्स। ओके, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर गाइज, थैंक यू एंड जय हिंद।